ہمارے آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے کلائمیٹ کرائسس پہ، اور اس پہ ہم کلائمیٹ کرائسس کے امپیکٹ پہ بات کریں گے، پوری دنیا پہ جو اس کے امپیکٹس ہو رہے ہیں بالخصوص پاکستان پہ. تو اس حوالے سے ہم نے اپنے پروگرام میں اپنے گیسٹ کو دعوت دی ہے. آپ سب جانتے ہیں وہ اکثر کلائمیٹ کرائسس پہ بات کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہوں گے رافع عالم جو کہ ایک انوائرمنٹل لائر ہیں. رافع، ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم جی، شکریہ، تھینک یو فار ہیونگ می. رافع، میں اپنے انٹرو میں بتا رہی تھی اور ہماری جو ریسرچ ہے اسے بھی ہمیں یہی فائنڈ آؤٹ ہوا ہے کہ کلائمیٹ کرائسس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ گرین ہاؤس گیسز ہیں. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یہ صحیح ہے، اور آپ تھوڑا سا ہمیں گرین ہاؤس گیسز کے حوالے سے بتائیں کہ کیا ہوا کہ یہ گیسز جو ہیں وہ اتنی زیادہ مقدار میں اب ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری موسمیاتی تبدیلی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے. جی ہاں، نہیں، موسمی تبدیلی ضرور گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے ہے. گرین ہاؤس گیسز جو فضا کے اندر پھنس جاتی ہیں وہ پھر سورج کی گرمی کو فضا کے اندر پھنسا دیتی ہیں. عام طور پہ جو سورج کی کرنیں ہوتی ہیں وہ ارتھ کو ریفلیکٹ ہو کر واپس باہر اسپیس کی طرف نکل جاتی ہیں، مگر گرین ہاؤس گیسز ان کو قابو کر کے جو فضا کا ٹیمپریچر ہے اس کو جلد بجلد بڑھانا شروع کر دیتا ہے، جس کو ہم گلوبل وارمنگ بلاتے ہیں. گرین ہاؤس گیسز مختلف قسم کی ہیں. قدرتی بھی گرین ہاؤس گیسز ہیں، جیسے واٹر ویپر، آپ کی باہر کی ہوا فضا جتنی جتنی زیادہ اس میں پانی ہوگا یا نمی ہوگی وہ سورج کی کرنوں کی اور اس کی گرمی کو قابو کر سکتی ہے. یہ ایک قدرتی گرین ہاؤس گیس ہے، اور یہ تو صدیوں نہیں، یہ تو جب سے قدرت پیدا ہوئی ہے یہ گرین ہاؤس گیس فضا کے اندر موجود رہی. میتھین بھی ایک گرین ہاؤس گیس ہے، یہ بھی قدرتی طور سے پیدا ہوتی ہے. جب بھی کوئی چیز ڈیکمپوز ہوتی ہے، چاہے وہ پانی کے نیچے یا اگر ہم یہ ٹھوس مفلجات کو لینڈ فلز کے اندر جب پھینک دیتے ہیں تو وہ جب ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس سے میتھین گیس پیدا ہوتی ہے، اور میتھین گیس بھی ایک گرین ہاؤس گیس ہے. مگر یہ نیچرلی بھی ہوتا ہے اگر چیزیں مرتی ہیں، اور پھر انسانی طور سے بھی کچھ ہمارے لینڈ فل ہیں. مگر میجر جو گرین ہاؤس گیسز ہیں پچھلے 250-300 سال کے اندر جس کی وجہ سے اس وقت کلائمیٹ کرائسس پیش آ رہا ہے، وہ ہیں جو بھی گیس نکلتی ہو جب آپ زمین سے کوئی چیز نکال کے اس کو جلائیں اپنی بجلی یا ٹرانسپورٹ کی نیڈ کے لیے. ٹھیک ہے جی، چاہے وہ لکڑی ہو، کوئلہ ہو، گیس ہو، پیٹرول ہو، ڈیزل ہو، جب آپ اس کو زمین سے نکال کے جلائیں گے اس سے گرین ہاؤس گیس پیدا ہوگی. اور انڈسٹریل ریولوشن سے آج تک ہماری دنیا کے اندر اتنی زیادہ گرین ہاؤس گیسز، چونکہ ہمارا زیادہ تر انرجی کا جو سورس ہے وہ گرین ہاؤس گیسز ہی ہیں، یہ فاسل فیولز ہی ہیں جس سے گرین ہاؤس گیسز پیدا ہوتی ہیں. تو اب گرین ہاؤس گیسز کو ناپنے کے لیے مختلف طریقے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک تو ہم فضا کے اندر کاربن کی شدت کو ناپتے ہیں، اور پچھلے سال میرا خیال ہوائی کے اندر مونا لاؤ آبزرویٹری کے اندر انہوں نے کہا کہ میرا خیال 422 پارٹس پر ملین کاربن کانسنٹریشن اس وقت دنیا کی فضا میں آن ایوریج ہے. اور ایسی شدت جو ہے وہ تاریخ کے اندر آپ کو تقریباً 50 لاکھ سے 1 کروڑ سال پیچھے جانا پڑے گا ٹو فائنڈ another ٹائم آن ارتھ جب شدت کاربن کی اتنی زیادہ تھی. اور اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ انسانیت، ہیومینٹی اس وقت تھی ہی نہیں. ہیومن بینگ سویلائزیشن جو ہے وہ کوئی 1.52 ملین ایئر سے زیادہ لمبی نہیں ہے. تو اس وقت ایک ہیلوسین ایکسٹنکشن ایونٹ ہوا تھا اتنی شدت کاربن کی وجہ سے، اور اس وقت دنیا کے اندر اتنی شدت کاربن ہے. اور اس کو ہم سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں، جب ہم ناپتے ہیں، ہمارے پاس کیا کہتے ہیں ٹیمپریچر ناپنے کے جو اکوپمنٹ ہے وہ پچھلے 2-3 سالوں سے ہے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایوریج طور پہ دنیا کی جو گلوبل وارمنگ ہے وہ تقریباً 1.1 یا 2 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ چکی ہے بنسبت انڈسٹریل ریولوشن. اور اس وقت صرف 1.1 یا 1.2 پہ ہم فلڈنگ دیکھ رہے ہیں، نہ صرف پاکستان کے اندر مگر یورپ کے اندر. ہم فلیش فلڈز، ہم ہیٹ ویوز دیکھ رہے ہیں. اس سال پوری دنیا میں ہیٹ ویوز چلے، نہ صرف پاکستان، ہندوستان، مارچ اپریل کے اندر، بٹ پوری دنیا کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، چین کے اندر. اور ہم فارسٹ فائرز دیکھ رہے ہیں، جنگل میں آگ لگتی ہے
आम तौर पे हम अमेरिका में देखते हैं या ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं। अब हम आर्कटिक सर्कल में भी देख रहे हैं, और इस साल हमने केपीके के अंदर 15,000 एकड़ जो है वो फॉरेस्ट फायर्स के अंदर लूज किए। बलूचिस्तान के अंदर जो चिलगोजों का जंगल था वो तकरीबन 3,000 एकड़ जले थे। तो ये तो सिर्फ 1.1 1.2 डिग्रीज वार्मिंग पे हम देख रहे हैं कि जो कुदरती निज़ाम है मौसमों का, वो जल्दी से तब्दील हो रहा है, और जिस चीज़ को हम इस वक़्त तक जानते आ रहे हैं, वो अब रही नहीं। यानी कि दिस इज़ नो लॉन्गर द अर्थ वी ग्रू अप इन। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया इस बारे में। राफ़ी, थोड़ी-सी अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें, बिकॉज़ क्लाइमेट क्राइसिस तो पूरी दुनिया फेस कर रही है इस वक़्त। लेकिन पिछले 1 डेढ़ साल से काफ़ी विज़िबल किस्म का इम्पैक्ट उसका हमें नज़र आता है पाकिस्तान के ऊपर। ख़ास तौर पर अभी जो फ्लडिंग हुई है। जी, सबसे पहले जो मौसमी तब्दीली का इश्यू है, ये मैं किस तरह बताऊँ, नेशन स्टेट सँभाल नहीं सकती। नेशन स्टेट का जो आइडिया है वो दूसरे नेशन स्टेट के साथ लड़ने का या उसके साथ पीस रखने का है। ये एक इंसानियत का मसला बन चुका है, क्लाइमेट क्राइसिस। ह्यूमन सिविलाइजेशन इज एट रिस्क। तो इस तरह के क्राइसिस में दुनिया को 200-250 मुल्कों में तकसीम करके उनको आपस में लड़ाना जो है एक बहुत सब ऑप्टिमल सिचुएशन है। ये मसले को हल करने का कोई ख़ास तरीका नहीं है। तो मैं ये नहीं समझता कि पाकिस्तान ज़्यादा वल्नरेबल है या कनाडा, बिकॉज़ हर जगह क्लाइमेट चेंज हो रही है। हर जगह फ्लडिंग पड़ रही है, हर जगह हरिकेन्स आ रहे हैं, हर जगह ड्रॉट्स पड़ रहे हैं। तो ऐसा ना समझिएगा कि कई मुल्कों के अंदर या कई खित्तों के अंदर क्लाइमेट चेंज नहीं है, हर जगह है। पाकिस्तान की जो आपने वल्नरेबिलिटी का कहा, वल्नरेबिलिटी जो चीज़ होती है ना, इट्स योर एबिलिटी टू स्टैंड बैक अप। अगर आपको कोई धक्का दे, आप दोबारा उठ सकें। देखिए ना जी, यहाँ जब फ्लड पड़ता है तो मेरा जो मकान है लाहौर के अंदर, इसको तो कुछ भी नहीं होगा, बारिश आप जितनी मर्ज़ी कर दें। आई एम नॉट वल्नरेबल। मगर जैसे इस वक़्त हम देख रहे हैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के अंदर जो फ्लडिंग हो रही है, वहाँ तो मिट्टी के घर हैं, और वहाँ घर भी नहीं बर्बाद होते, वहाँ फिर सड़कें, अस्पताल और स्कूल भी ख़त्म हो जाते हैं। तो उनको दोबारा अपने लाइफ़ को सँभालने के लिए ना सिर्फ़ घर बनाना पड़ता है, गवर्नमेंट को सड़क बनानी पड़ती है, स्कूल बनाना पड़ता है और अस्पताल बनाना पड़ता है। इसको 10-15 साल लग जाते हैं दोबारा खड़े होने में। दिस इज़ आवर वल्नरेबिलिटी। चूँकि हम गरीब हैं, ये ना समझिएगा कि यहाँ कुछ ज़्यादा हो रहा है। हमारी वल्नरेबिलिटी हमारी गुर्बत की वजह से है। जी, बिल्कुल राफ़ी, आप थोड़ा-सा हमें बताएँ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो किन पॉलिसीज़ पे इस वक़्त काम कर रही है, और आप या आपकी फ़र्म इस हवाले से क्या सजेशन पाकिस्तान को देती है कि पाकिस्तान के जो स्पेसिफ़िक सर्कमस्टांसेस हैं, उनमें पाकिस्तान को किन इक़दामात करने की ज़रूरत है? देखिए, पाकिस्तान का जो लीगल, कानूनी और पॉलिसी मौसमी तब्दीली के हवाले से जो कानूनी और पॉलिसी तारीख है, वो काबिल एहतराम है। आई थिंक इट्स क्वाइट गुड। हमने 2012 में एक नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनाई, और 2017 में एक क्लाइमेट चेंज एक्ट बनाया, और आपको कहीं और इस तरह का डेवलपिंग मुल्क नहीं मिलेगा जहां इस तरह एक वफाकी पॉलिसी और कानून दोनों मौजूद हों। मगर पॉलिसी होने के बावजूद देखें, एक तो उसको 10 साल तकरीबन हो चुके हैं, और ये वफाकी पॉलिसी है। हमारे सूबों को मौसमी तब्दीली मुख्तलिफ तरीकों से आकर असर पड़ाती है। पंजाब के अंदर फ्लडिंग या बारिश जब होती है तो वहाँ फ्लडिंग मुख्तलिफ होती है। बलूचिस्तान या सिंध के अंदर फ्लडिंग हो तो वो मुख्तलिफ होती है। जंगलात ज़्यादातर केपीके के अंदर हैं। तो इस तरह जो मौसम के असरात हैं वो हर सूबे में मुख्तलिफ हैं, और हमारी वफाकी पॉलिसी सूबाई पॉलिसी का कोई मुकाबला नहीं। इस वक्त किसी भी सूबे ने बानिस्बत केपीके ने अपना सूबाई क्लाइमेट पॉलिसी नहीं बनाया, ना क्लाइमेट गवर्नेंस को समझने की कोशिश की है। वफाकी तौर पे हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, वो बनी थी 18वीं तरमीम के बाद। वो एक वफाकी मिनिस्ट्री है, उसकी मैं समझता हूँ ज़्यादातर ज़िम्मेदारी जो है, वो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और उसके तहत जो मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मुआहदे हुए हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्टिंग करती है। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का काम जो है, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट का नहीं, वो सूबे का काम है। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की ज़िम्मेदारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की नहीं,
وہ صوبے کی ذمہ داری ہے. اور اس وقت ہمارے جو صوبے ہیں، صوبائی ادارے ہیں، صوبائی حکومتیں ہیں، ان کو صحیح طرح سوچنا ہوگا اس کلائمیٹ ماحولیاتی کرائسس کے سامنے کہ وہ جلد از جلد اپنی پالیسیز اور اپنی گورننس کو کلائمیٹ چینج کے اندر لے کر آئیں جلد از جلد. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف درخت لگانے سے کسی نہ کسی طرح، یا پاکستان کی یہ زیادہ تر چونکہ گرین ہاؤس گیسز نہیں ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اس موسمی تبدیلی کو اس طرح نہ سمجھیے گا. ہاں ضرور پاکستان نے بنسبت جو امیر ملک ہیں، یورپ ہے، نارتھ امریکہ ہے، اس کے بنسبت بہت کم گرین ہاؤس گیسز پیدا کی ہیں اپنی تاریخ کے اندر. مگر وہ ایک مختلف جنگ ہے، وہ ایک مختلف بحث ہے، وہ یونائٹڈ نیشنز لیول پہ چلے گی جہاں ان ملکوں سے پیسے پاکستان آنے پڑیں گے لاس اینڈ ڈیمیج کی کمپنسیشن کے لیے. مگر اس وقت یہ بین الاقوامی ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری حکومت، ہمارے جو ادارے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ موسمی تبدیلی کو ایک گورننس ایشو بنائیں، اس پہ بجٹ لے کر آئیں اور اس پہ کسی نہ کسی طرح اپنی پالیسیز بنا کر ان پہ عمل کریں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی کرنٹلی اسٹیٹ لیول پہ پاکستان میں کس طرح کیسے پروجیکٹس ہیں جس میں کلائمیٹ کرائسس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، یا ایسا کوئی پروجیکٹ کرنٹلی آپ کی نظر سے گزرا ہو جو آپ کو لگے کہ گورنمنٹ اس بارے میں سیریس ہے یا وہ اسٹیپس لینا چاہ رہی ہے؟ نہیں، مختلف پروجیکٹ ضرور ہیں. پچھلے 8-10 سال کے اندر منسٹری آف کلائمیٹ چینج، نہ صرف منسٹری آف کلائمیٹ چینج مگر اکا دکا صوبائی لیول پہ بھی کلائمیٹ اڈیپٹیشن یا میٹیگیشن کے پروجیکٹس جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوئے ہیں. وفاقی طور پہ جو سب سے بڑا ہم نے پروجیکٹ دیکھا ہے وہ 10 بلین ٹری سونامی ہے، اور کافی اہم پروجیکٹ، کافی اچھا پروجیکٹ. مگر کلائمیٹ گورننس وہاں ختم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو ہمارے شہروں کے اندر ہوائی آلودگی ہے، اس کا ہمیں پتہ ہے کہ زیادہ تر گاڑیوں سے جو دھواں نکلتا ہے اس کی وجہ سے، اور وہ جو دھواں ہے اس میں بھی گرین ہاؤس گیسز ہوتی ہیں. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور نہ صرف یہ بٹ ہمارا جو پاکستان کا جو فیول بل آتا ہے، چونکہ ہم پیٹرول باہر سے امپورٹ کرتے ہیں ڈالرز کو خرچ کر کے، تو 2019 میں منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے ایک الیکٹرک وہیکل پالیسی بنائی جس کی نظر میں اگلے 10 سال کے اندر پاکستان کے اندر جو اس وقت گاڑیاں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کمبسچن انجن آٹوموبیل، ان کو 20-25-30% تک الیکٹرک وہیکلس کے اندر ریپلیس کر دیا جائے. اور وہ کس طرح؟ بائی میکنگ پاکستان اے ہب فار دا مینوفیکچرنگ آف الیکٹرک وہیکلس. یہ اس پالیسی کی سوچ ہے، وہ وفاقی ایک پالیسی ہے، لیکن انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں اس پہ صحیح طرح اس وقت عمل نہیں ہو رہا. ہمیں اس طرح سڑکوں پہ الیکٹرک وہیکلز بنسبت صرف یہ بی ایم ڈبلیو آؤڈی کے آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن کامن مین کے لیے الیکٹرک وہیکلز یا رکشے یا موٹر سائیکلز ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہی. اس سے ہٹ کے سولرائزیشن پروجیکٹس ہوئے ہیں صوبائی لیول پہ. پنجاب میں قائد اعظم سولر پروجیکٹ چلا ہے، سندھ کے اندر بھی یہ ونڈ کے پروجیکٹس چلے ہیں. اینڈ پنجاب کے اندر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی جو نہروں کو سنبھالنے کی اور اپنے اریگیشن سسٹم بندز کو سنبھالنے کا جو پروجیکٹس ہیں وہ اکثر کلائمیٹ چینج کو سامنے نظر کرتے ہوئے ڈیزائن کیے جاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ضرور ہو رہی ہیں، مگر دیکھیں دس از ناٹ انف. اس سال اور صرف اس سال پاکستان میں سب سے پہلے ہوائی آلودگی کا ایک کلائمیٹ کرائسس گزرا، پھر بیفور ایون ونٹر فنشڈ مارچ کے اندر ہیٹ ویو آ گیا. اور میری اریگیشن ڈپارٹمنٹ والوں سے یہاں بات ہو رہی تھی، انہوں نے بتایا عام طور پہ جب گرمی پڑتی ہے وہ لیٹ اپریل ارلی مئی میں پڑتی ہے، اور اس وقت تک جب گرمی پڑتی ہے تو فارمرز جو ہوتے ہیں وہ اپنی فصلوں کو اکثر پانی دیتے ہیں تاکہ فصلیں جل نہ جائیں. تو پانی کا ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ تر لیٹ اپریل ارلی مئی کے اندر شروع ہوتا ہے، لیکن اس وقت تک جو گلیشیئرز ہیں، ہمارے پہاڑ جو ہیں، وہ گرمی کی وجہ سے پگھلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور نہروں کے اندر اور براجز کے اندر پانی، سسٹم کے اندر پانی تھوڑا بہت ہوتا ہے اس طرح کی گرمی کے لیے. لیکن مارچ میں، مڈ مارچ کے اندر اس سال جب ہیٹ ویو شروع ہوا تو وہ برف پگھلی نہیں تھی، ہمارے سسٹم میں پانی نہیں تھا. پنجاب میں پانی نہیں تھا 8-10 دن کے لیے، پنجاب کے اندر 5-10 دن کے لیے پانی نہیں تھا اس سال. And only 2-3 months later پنجاب کے اندر فلڈنگ ہو رہی ہے. اس کے جو نقصان ہیں ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آئے. ہیٹ ویو کی وجہ سے فوڈ پروڈکٹیوٹی اور کراپ پروڈکٹیوٹی پہ ابھی تک کوئی جائزہ نہیں لیا گیا، let alone the damage caused by these floods. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں this is the coolest year of the rest of our lives. ٹیمپریچرز اس کے بعد صرف بڑھتے ہی جا رہے ہیں. تو اگلے سال سے اب دیکھیے گا
पंजाब पाकिस्तान के अंदर 8 से 9 महीने गर्मी पड़ेगी और फिर बाकी 3-4 जो महीने हैं वो हवाई आलूदगी में हम शिकार रहेंगे। जी, राफ़िया आपकी बात से मुझे यही समझ लगी कि ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है ये एक ग्लोबल मसला है। जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में बेशक ग्रीन हाउस गैसेज़ जो हैं उसका इखराज बहुत कम हुआ है क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इतना नहीं पाकिस्तान से हुआ। लेकिन फिर ऐसा क्यों है? फिर ये सैलाब जो है इसकी क्या वजूहात है? मेन इसकी क्या वजह है? जो पाकिस्तान में भी हालिया सैलाब की सूरत हाल हुई है। देखिए, इसको एट्रीब्यूशन कहते हैं और मैं जल से भाग के मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो बर्फबारी हुई है ये क्लाइमेट की वजह से हुई है। लेकिन जो फ्लड प्रोटेक्शन और डिजास्टर रिहेबिलिटेशन और मैनेजमेंट में आप याद करिए 2010 फ्लड्स के बाद एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी थी बिकॉज हमें एहसास हो गया था कि पाकिस्तान इज वल्नरेबल और हमें एक इदारा बनाना है जो कि इस तरह की चीज़ों से हमें बचाए और तैयारी रखे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के क्लाइमेट रिस्क को असेस करें और जहां उनको कहीं नुकसान नजर आ रहा हो तो वहां डिजास्टर रिलीफ जल्द से जल्द पहुंचाएं। ये हमारा 10-12 साल नहीं गुजरे, एक इवेंट गुजरा है जिसको हम ऐसा लगता है हम भूल चुके हैं। सो इट्स नॉट जस्ट कि ये बर्फ ये जो बारिश हुई है या ये फ्लडिंग है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। मैं तो काफ़ी खौफ से यहाँ बैठा हूँ क्योंकि हमने जो 10 साल पहले इदारे बनाए थे इन्हीं तरह की चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने नाकामी दिखाई। देखें, ये वल्नरेबिलिटी की बात है। इट्स नॉट जस्ट कि बारिश होगी या फ्लड पड़ेगा, उसकी हम तैयारी तो करें ना कम से कम। तो उस तैयारी में हमने जो इदारे लगाए हैं, बनाए हैं, उनको पैसे दिए हैं, उनसे कोई जाके पूछे कि आप भाईजान आप क्या कर रहे हैं? वेयर इज द फ्लड रिलीफ? हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के पास इस वक्त फॉरेस्ट फायर्स को बुझाने के लिए इक्विपमेंट नहीं है, ना यूनिफॉर्म है उनके पास, ना प्रोटेक्टिव गियर है, ना ट्रक्स हैं और ना वो जहाज हैं जिनसे पानी आप फेंक सकते हैं। तो इस तरह के पत्थर से किस तरह खून निकालेंगे आप? अच्छा, आप बात कर रहे हैं सैलाब के हवाले से। मैंने आपसे पूछना था कि इंटरनेशनली मैंने देखा है स्पेशली चाइना में एक प्रोजेक्ट है टोरेंटस्केप के नाम से। उसके जो को फाउंडर है डॉक्टर यू, वो ये कहते हैं कि फ्लड्स आर नॉट एनिमीज और उनका प्रोजेक्ट क्या करता है कि वो फ्लड का जो पानी है उसको वेटलैंड्स या स्मॉल सिटीज की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो पाकिस्तान में इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आपने सजेस्ट किया है गवर्नमेंट को या कोई फ्यूचर में इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आने की इम्कानात हैं? बथेरे हैं जी। क्या कहते हैं फेडरल फ्लड कमीशन, क्या कहते हैं जो 61 में फ्लड हुआ था और फिर दोबारा 77 के अंदर पाकिस्तान के 78 में फ्लड आया था। तो उसके बाद हमने वफाकी तौर पे एक फेडरल फ्लड कमीशन बनाई थी, वो वापडा के साथ जुड़ा हुआ है। वो एक नेशनल फ्लड एक्शन प्लान बनाते हैं और चौथा प्लान उन्होंने 2018 के अंदर बनाया था। वो पूरा एक प्रोजेक्ट है, 100 पेज का डॉक्यूमेंट है, साफ लिखा हुआ है हमें कौन कौन सी चीजें करने को है। इट्स नॉट लाइक वी डोंट नो। ओके, सो वी हैव द अवेयरनेस लेकिन काम नहीं हो रहा। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये नहीं पता कि ये फ्लड्स जो हैं क्लाइमेट की वजह से हैं कि नहीं, या मौसमी तब्दीली की वजह से हैं, लेकिन मौसमी तब्दीली आ रही है और हो रही है और जिन इदारों को हमने बनाकर फंड किया है वो अपनी नाकामी दिखा रहे हैं। ये हमारी वल्नरेबिलिटी है। अगर ये इदारे काम करें तो वो हमें बता सकते हैं कि जी फ्लड आ रहा है, इस फ्लड का पानी आप इस तरह बचा दें, या अगर फ्लड आ रहा है तो मेहरबानी से अपने घर जो है फ्लड प्लेन के अंदर ना बनाएं। बिकॉज फ्लड देखें एक कुदरती चीज होती है। एट द एंड ऑफ द डे फ्लड कुदरती चीज तो होती है ना। हर साल बरसात का मौसम आता है, हर साल पानी पड़ता तो है, इन दरियाओं को भरना तो है ना जी, इनको फ्लड तो होना है। मगर हम फ्लड प्लेन्स के अंदर अपनी अर्बन वो हाउसिंग सोसाइटीज बना देते हैं या खेती बाड़ी शुरू कर देते हैं, तो 10 साल फ्लड नहीं हुआ, कोई पूछने वाला नहीं होता उनसे। फिर बाद में जब फ्लड आता है उसका नुकसान इस तरह पड़ता है बिकॉज पीपल आरंट प्रिपेयर्ड फॉर इट। जी, अच्छा आखिर में जो है आपसे हम थोड़ी सजेशन जानना चाहेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्योंकि आप एज एन एनवायरमेंटल लॉयर जो हैं काम करते हैं और पॉलिसी मेकर्स के साथ भी आपने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स की हुई हैं, व्हाट आर योर टॉप सजेशन? वो आप कौन सी ऐसे सजेशन देना चाहेंगे जो हमें स्टेट लेवल पे अपनानी चाहिए
ताकि इस किस्म के जैसे अभी करंटली हालात हुए हैं इनसे हम फ्यूचर में बच सकें, और एक हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट क्राइसिस? देखिए, मैं आपको क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि बैनुल-अक़वाम, आपने शायद सुना हो, पेरिस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि हम 1.5 डिग्री से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की इजाज़त नहीं देंगे, और जो बाकी मुल्क हैं वो इसी गोल को क्या कहते हैं परस्यू कर रहे हैं। तो असलियत ये है कि इस वक़्त फ़िज़ा के अंदर जितना कार्बन और ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, वो तकरीबन अगले 7-8 साल के अंदर हम टॉप जाएँगे, और 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 20-50, 20-60 तक हम टॉप जाएँगे। और जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स आती हैं, उनके अंदर एक है, उन्होंने जायज़ा लिया था कि नुकसान कितना होगा हवाई आलूदगी से अगर हम 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएँ, बिकॉज़ आपको ग्रीन हाउस गैसेज़, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी से जब निकालेंगे, उससे धुआँ निकलेगा, तो वो हवाई आलूदगी का एक मसला है, और शदीद बढ़ता जाएगा। तो उन्होंने जायज़ा लगा के ये कहा कि 1.5 डिग्री और 2 डिग्री में जो फ़र्क है, वो तकरीबन 15 करोड़ जानें, यानी कि 150 मिलियन पीपल आर एस्टिमेटेड टू लूज़ देयर लाइव्स अगर हम 1.5 से 2 डिग्री चले जाएँ। और ये फिगर जो है, अगर आप पहली और दूसरी बड़ी जंग के अंदर जितने भी सिपाही शहीद हुए थे, उनका अगर आप नंबर लेके उसको 4 से मल्टीप्लाई करें, तो ये नंबर ज़्यादा है, और ये अगले 20-30 साल के अंदर हम देखने वाले हैं। This is the amount of loss and damage estimated approximately 10-12 million people a year, और वो ज़्यादातर vulnerable मुल्क के अंदर होंगे, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर होंगे। तो इस तरह के नुकसान और साने को सामने रखते हुए, मैं तो समझता हूँ नेशनल इमरजेंसी से कम हमें ये क्या कहते हैं कदम नहीं उठाना चाहिए। ये जो ग्रीन हाउस गैस, देखिए, पाकिस्तान में नॉट बी अ लार्ज ग्रीन हाउस गैस इमिटर, ठीक है जी, मगर जिस तरह के हम प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, पहाड़ों के अंदर हाउसिंग स्कीमें, टूरिज्म से K2 पहाड़ खराब, पहाड़ों के दरमियान सड़क लगाकर वहाँ डीजल ट्रक चलाना, इस तरह की चीज़ें तो हम रोक सकते हैं ना जी। बाकी जो हम ज़राए के अंदर, अपने इरिगेशन के अंदर जिस तरह की टेक्नोलॉजी या बेहतर प्रैक्टिस ला सकें ताकि अगले सैलाब के अंदर या हीट वेव के अंदर हम बच सकें, इस तरह की साइंस के अंदर इन्वेस्ट करें। अपने शहरों को ये सैलाबों से बचाने के लिए डिज़ाइन करें, लोगों के लिए डिज़ाइन करें, हीट वेव से बचने के लिए डिज़ाइन करें। और ये बाकी जो है फलाना माफिया को इंसेंटिव देना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सब्सिडी देना, सीमेंट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इंसेंटिव देना, ये बंद करें। लोगों के लिए मौसमी जो तब्दीली का सानिया है, उसकी गवर्नेंस की जिम्मेदारी पूरी करें, और पैसे खर्चना शुरू कर दें। अच्छा राफ़िया, आपने एक बड़ा ज़बरदस्त सा सस्टेनेबल ग्लास में आप पानी पी रहे हैं, फिर कॉफ़ी जो भी आप पी रहे हैं। तो मैंने आपसे ये पूछना था कि मैंने देखा है कि यूरोप में जो यंग बच्चे-बच्ची हैं, उन्होंने तो बाय एयर ट्रैवल भी करना बंद कर दिया है कि ये बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिट करती है इस पे ट्रैवल अफोर्डेबिलिटी के बावजूद। तो आप पाकिस्तान के जो नई जनरेशन है, बल्कि सबको ही क्या मशवरा देंगे कि वो इंडिविजुअल लेवल पे क्या सस्टेनेबल मेजर ले अपने आम रोजमर्रा की जिंदगी में, जिससे जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर क्या तब्दीली ला सकती है? सानेहा जो है कल रात नहीं पहुंचा। इस सानेहा को मुख्तलिफ सिस्टम्स पुश करती आ रही हैं। इसमें हमारे इकोनॉमिक सिस्टम, पित्तरशाही, कॉलोनियलिज्म, कंज्यूमरिज्म सब कुछ शामिल है। ठीक है जी। अब अगर मैं दांत ब्रश करते हुए ठूठी बंद कर दूं, या अपना घर इलेक्ट्रिक व्हीकल कर दूं, या प्लास्टिक स्ट्रॉ इस्तेमाल करूं, या इस तरह का 50 रुपए का लोहे का कप जो मैंने दिल्ली गेट से लिया है उसको इस्तेमाल करूं, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि हम इन सिस्टम्स को ना चैलेंज करके इनको बंद करें। देखें, मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूं, मैं जो मर्जी करूं, मेरे से सबसे ज्यादा आलूदगी जो होगी वो गाड़ी में और अपनी बिजली के बिल में होगी, बिकॉज बिजली हमारी ज्यादातर फॉसिल फ्यूल से और गाड़ी भी फॉसिल फ्यूल से चलती है। अब देखें, इंडिविजुअली मैं कितना कर सकता हूं, मैं अपने घर को चेंज कर सकता हूं, लेकिन जो चीज करने को है वो एनर्जी सिस्टम को रिफॉर्म करने की है। जहां इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के टैरिफ्स बनिस्बत बाकी सारी बिजली सस्ती पड़ती है, इंक्लूडिंग कोल, आपको सोलर और विंड एनर्जी सस्ती पड़ेगी। ठीक है ना जी।
तो हमें वहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन तरह की चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बिकॉज़ बीफ प्रोडक्शन में मीथेन बहुत ज़्यादा पैदा होती है, ठीक है जी? अगर आपको इतना शौक है तो फिर तिक्के ना खाएँ बिकॉज़ तिक्के कोयले पे बनते हैं और वो फॉसिल फ्यूल बनता है, दैट्स अ फॉसिल फ्यूल। तो इस तरह की चीज़ें आप सोचें फिर। हज पे पाबंदी लग सकती है, नहीं फ्लाइंग ना करें, पुराने ज़माने वाला सिस्टम करें, ऊँट पे चढ़ के सारों को सलाम अलैकुम करके आप निकल जाएँ। तिक्के बंद करें, चेंज योर हैबिट्स। एक शर्ट के अंदर आपको 8000 लीटर पानी लगता है, कॉटन शर्ट के अंदर। हर साल फैशन तब्दील ना करें, बिकम मोर सस्टेनेबल देन। बट ये फिर सारों को करना पड़ेगा, ये सोशल चेंज लानी पड़ेगी, ये एक पॉलिटिकल चेंज लानी पड़ेगी। लेकिन जिन नेशंस का एक नेशनल गोल है या उन्होंने एक टारगेट बनाया कि हमें 2030 तक जैसे डेनमार्क है उसका एक नेशनल ये गोल है आपको ये गलतफ़हमी है। ये गलतफ़हमी है कि यूएनएफसीसीसी और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ ने जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत अपने जिसे कहते हैं नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस टू ग्रीन हाउस गैस रिडक्शंस जो जमा की हैं, उसका जब आप हिसाब करते हैं तो 1.5 पे नहीं रुकते, कोई तकरीबन 2.2 पे आके रुक रहे हैं इस वक़्त। We have produced more greenhouse gases since the UNFCCC since ever before. ये मुआहदा फेल हो चुका है, ये नहीं चल रहा। ठीक है जी, हम 1.5 अगले 8 साल में टाप जाएंगे। द पेरिस एग्रीमेंट इज वायलेटेड। ये ना समझिएगा कि वो कुछ हो रहा है। और यहाँ फिर देखें जिम्मेदारी उन ममालिक और सोसाइटीज की बनती है जिन्होंने पिछले 150-200 साल में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से फॉसिल फ्यूल्स जलाकर हमें इस वक्त तक इस जगह ले आए हैं, इस सानहे पे ले आए हैं। उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है ना जी, बैन अवी लेवल पे। बिकॉज उन्होंने पैसे कहाँ से कमाए मुझे बताएं। ग्लोबल नॉर्थ ने ग्लोबल साउथ से ही तो पैसे पिछले 150 साल से निकाले अपनी कॉलोनियलिज्म के थ्रू, अपनी कैपिटलिज्म इकोनॉमी के थ्रू। तो वो पैसे हमारे हैं और हमें उनकी जरूरत है बिकॉज यहाँ लॉस और डैमेज हो रहा है। वर्ल्ड वल्नरेबल कंट्रीज। तो इन बैन अवी सतह पे हम जाकर जब बात करते हैं तो वो हमें बताते हैं हम आपको ग्रांट देंगे। देखें हाजरीन, ये ग्रांट नहीं है, ये हमारे पैसे आप लेकर गए हैं और लॉस और डैमेज यहाँ हो रहा है। इसको अंग्रेजी में रेपरेशंस कहते हैं। ये हमारे पैसे हैं और इनको देने पड़ेंगे। तो ये भी एक आप समझ लें इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल साउथ का डिबेट चल रहा है ग्लोबल नॉर्थ के साथ कि आपने एक तो देखें ये मसला उठाया है, दूसरा आप यू नॉट डूइंग इनफ, आप कुछ कर भी नहीं रहे, तीसरा आपके पास हमारे पैसे, तो आप प्लीज वापस करें इनको ताकि हम अपनी सोसाइटीज और अपनी इकोनॉमीज के अंदर डालें ताकि हम अपने लोगों को बचा सकें। मैं ये जानना चाहती थी कि अभी सफारती सतह पे पाकिस्तान इस बारे में क्या कर रहा है? लाइक डू वी हैव, हमारे लीडर्स इस बारे में इंटरेस्टेड भी हैं कि इंटरनेशनल जो पावर्स हैं उनके साथ इस बारे में डिबेट हो या आगे मजीद बात को बढ़ाया जाए और ये इसके बारे में कोई सस्टेनेबल सॉल्यूशंस निकाली जाए? अब पिछले पाकिस्तान की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, जो बैन अवी लेवल पे जो माहौलियाती तब्दीली का मुआहदा है, उसके तहत जो हर साल कॉन्फ्रेंस होती है उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बुलाते हैं, कॉप। तो हर साल पाकिस्तान शामिल होता है कॉप के अंदर, लेकिन हमारी जो टीम जाती है वो छोटी सी जाती है। आपने शायद ऑस्टेरिटी का सुना हो। ऑस्टेरिटी के अंदर हमारी टीमें जो बाहर जाती हैं वो छोटी छोटी ही रहती हैं। फिर आपने पिछली हुकूमत का भी सुना होगा कि ये सारे जो हैं इस तरह के खर्चे जो हैं बंद किए जाएंगे, तो उसके नतीजे में टीम मुझसे भी छोटी हो जाती है। लेकिन दूसरे मुल्क जब जाते हैं तो वो 2-2, 3-3 सौ एक्सपर्ट्स लेकर जाते हैं ताकि वो अपना केस वहां प्रेजेंट कर सकें। We just don't have the manpower at the MOCC to make a case. Thank you so much. Thank you so much, Rafe. That's really, really kind of you. And आपने बहुत अच्छे से हमें इन्फॉर्म भी किया. Hello everyone, I'm Rafe Alam. I'd like to request you to please subscribe to The Inclusive and get this new news from this new and exciting YouTube channel.